Father God, we just want to come at this time into your hands, Lord Jesus. And Lord, even as I share your word, Lord, I pray, Lord, that will impact many lives, Lord Jesus. I pray, Lord, that your supernatural presence and your Holy Spirit will be with me to direct me and guide me, Lord. Even as I share your word, Lord Jesus, I pray, Lord, that your word will be received into the hearts of many, Lord. And I pray, Lord, that you will do an amazing work, Lord, and you will you will have an encountering time with each and every one that has walked into this place, Lord. We thank you, Lord Jesus, that you are in our midst, Lord, and we give you glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. This week, God has been challenging me about stepping out in faith. इस सप्ताह में प्रभु ने मुझे विश्वास में आगे कदम बढ़ाने के ऊपर बहुत ही जोश से भरा है और चुनौती दी है इसके बारे में. It is very easy to preach about faith. और बहुत ही आसान है विश्वास के बारे में प्रचार करना. Putting it into practice is really difficult. लेकिन वो अपने जीवन में उतारना बहुत ही मुश्किल है. Today I would like to share about a woman from the Bible who was commended for her faith in God. और आज मैं ऐसी स्त्री के बारे में बताना चाहूंगी जिसको शास्त्र में उसके विश्वास की वजह से बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है. Thank you. So we're going to be looking at the title Responding to Risks with Faith. और शीर्षक जो है वो ये है कि जोखम को हम कैसे विश्वास से उसका सामना करें. In the Bible we've read about many heroes of faith. और शास्त्र में कई विश्वास के हमने उदाहरण देखे हैं लोगों को. Especially those that are included in the genealogy of Jesus Christ. और खासकर यीशु के वंशावली में जो लोग हैं. Most of them were ordinary people like you and me. और उनमें से कई लोग हम जैसे ही सामान्य लोग थे. But one of the great things that the Bible talks about, लेकिन उनके बारे में शास्त्र जो कहता है or tells us, is the honest story about their lives. लेकिन शास्त्र हमें उनके जीवन की सही बातें बताता है. It describes their strengths and weaknesses. और उनकी जो ताकत है, उनकी जो कमजोरी है, उन सारी चीजों को बताता है. Their triumphs and downfalls as well. और वो जब विजयी होते हैं, जब वो हारते हैं, उन सारी बातों को शास्त्र बताता है. Today we're going to look at Joshua chapter 3. और आज हम यहोशू की किताब 3 अध्याय से पढ़ेंगे. And it's going to be about Rahab. 2 अध्याय से पढ़ेंगे. Okay, Rahab was a prostitute. और राहब जो थी एक वैश्या थी. And there are a few verses in the Bible that talks about her. James 2 verse 25, Hebrews 11 verse 31, and Joshua 6 verse 25. शास्त्र में कई जगह पे उसका वर्णन किया गया है. यहोशू 2 और 25 में, इब्रानियों 11 और 31 में, यहोशू 6 और 25 में. Rahab lived at the time of Joshua. और राहब जो थी यहोशू के समय में थी. When the Israelites had finally entered into the promised land. जब इजरायली लोगों ने वचन के देश में उन्होंने वो वहां पहुंच गए थे. Although a citizen of Jericho, और यरीहो की वो नागरिक थी. she had heard about God's miracles on behalf of the Jews. उसने इजरायलियों के परमेश्वर ने जो महान कार्य किए थे उनके बारे में सुना था. And what the Lord God of heaven and the Lord God beneath on the earth had done. और स्वर्ग का परमेश्वर और पृथ्वी के परमेश्वर ने उनके जीवनों में जो किया था उसके बारे में उन्होंने सुना था. She is one of the 5 women mentioned in Jesus' genealogy, in Matthew's genealogy of Christ. और मत्ती ने यीशु के बारे में जो यीशु की जो वंशावली लिखी है उसमें से सिर्फ 5 औरतों का नाम लिखा है और उनमें से एक थी राहब. Apart from Tamar, the wife of Judah. और तमार जुड़ा की वाइफ. Ruth, the wife of Boaz. रूथ जो बोआज की पत्नी थी. Bathsheba, the wife of King David. बत्शीबा जो दाऊद राजा की पत्नी थी. And Mary, the mother of Jesus. और मरियम जो यीशु की माँ थी. So come, let's read Joshua chapter 2 verses 1 to 24. तो आइए हम यहोशू की किताब 2 से पढ़ेंगे. Grace will read it in Hindi to save time. और मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ूंगी समय बचाने के लिए. And the rest of us can read it on the screen. तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से छुपके से भेजा और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो.
तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने यहाँ आ गए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास ये कहलाकर भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुष को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो है, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वह निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। और तुम फुर्ती करो और उनका पीछा करो और उन्हें जा पकड़ो। उसने उनको घर के छत पर चढ़ाकर सुनई के लकड़ियों के नीचे छुपा दिया था, जो उसने छत पर सजा रखी थी। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और जो कि उनको खोजने वाला फाटक से निकले तो ही फाटक बंद किया गया। ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यह यहोवा ने तुम्हें मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सिय्योन और आग नामक यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे के पृथ्वी का परमेश्वर है। Amen. अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है, उन सबों को भी जीवित रख छोड़ोगे, और हम सब का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे, तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा, तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। तब राहाब, जिसका घर शहरपनाह पर बना था और वह वहां रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया, और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा न हो कि खोजने वाले तुमको पाए। इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए, तब तक अर्थात 3 दिन वही छुपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उनसे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है, उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, उसमें यह लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता, भाइयों वरन और पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले, उसके खून का दोष उसी के सर पड़ेगा, और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी का हाथ पड़े, तो उसके खून का दोष हमारे सर पर पड़ेगा। फिर यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट करे, तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है,
उससे हम स्वतंत्र ठहरेंगे। उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए। और So we'll read till 21. Okay. And then in 22, we see, so she sent them away and they returned back. And then they told Joshua as to what had happened. And they said that the Lord has surely given the whole land into our hands, and all the people are melting in fear because of us. और आगे उसने उन्हें विदा किया। वो यहोशू के पास गए और यहोशू को उन्होंने बताया कि इस राज्य के लोग जो है वो हमसे बहुत ही भयभीत हो गए हैं। In the book of Joshua, we are introduced to a faithful woman, as I said earlier, known as Rahab. और राहब नामक एक स्त्री का यहोशू के किताब में हम उसे देखते हैं। She is also mentioned in Hebrews chapter 11, verse 31, as a woman of faith, the heroes of faith. और इब्रानियों में भी जहाँ पे विश्वासी लोगों के बारे में शास्त्र में लिखा हुआ है, वहाँ पे राहब का नाम है। And her amazing story portrays how God accepts a person no matter what his or her background is. और उसकी जो अद्भुत कहानी है उससे हम देखते हैं कि परमेश्वर किसी भी तरह के व्यक्ति को, उनका अतीत कुछ भी हो, लेकिन प्रभु उन्हें स्वीकार करता है। Hebrews 11 verse 31, you can read it at home. I'm not going to read it. You can note it down. इब्रानियों 11 और 24 आप And घर पे पढ़ सकते हैं। also in the book of James, she is shown as an example of someone justified by God. और यहोशू की किताब में भी नए करार में वहाँ लिखा गया उसके बारे में प्रभु के द्वारा। And declared righteous. और उसे धर्मी ठहराया गया है। For putting her faith into action. क्योंकि उसने अपने विश्वास को कार्य में करके दिखाया। Okay, this is in James 2 verses 24 to 25. और यहोशू 2 24 और 25 में ये लिखा है। A life of faith as a follower of Jesus is full of risks. और यीशु के पीछे हम जब विश्वास के साथ चलते हैं तो हमारी जीवन पे जोखिम तो होता ही है। It takes a response. Okay, takes a response, grows in reliance, and brings us rest and assurance that God is with us. और उसके हम प्रतिक्रिया ऐसे करते हैं कि हमें प्रभु में हम विश्वास करते हैं, हम जानते हैं प्रभु कौन है और प्रभु हमारे साथ खड़ा हो सकता है, ये जान के हम जोखिम में अपना हाथ डालते हैं। After the death of Moses, the Lord spoke to Joshua, और मूसा के मृत्यु के बाद प्रभु ने यहोशू से बात की, the son of Nun, to lead the people across the Jordan River. नून का जो पुत्र था, और इजरायलियों को यर्दन के उस पार लेके जाने के लिए into the land he had promised Moses. प्रभु ने जो मूसा को जगह का वादा दिया था उसी जगह पे यहोशू ने लेके जाने वाला था। And he had promised to be with him and not to abandon him nor forsake him. और उसने यहोशू से वादा किया था कि वो कभी भी उसे नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। As we read the passage, we saw that, और जैसे हमने पढ़ा, हमने देखा, spies were sent out by Joshua कि यहोशू ने जो है जासूस भेजे थे to spy out the land on the other side of the river Jordan, ताकि उस देश में क्या चल रहा है वहां पे वो देखे। It was not by chance that these spies were sent, और ऐसा नहीं है कि ये जासूस अपने आप ही वहां चले गए and that they found Rahab's house. और उन्होंने राहब के घर को ढूंढ लिया। God directed them there प्रभु उन्हें वहीं पे लेके गया because he knew her heart was open to him, क्योंकि वो जानता था कि उसका हृदय, राहब का हृदय प्रभु के लिए खुला था, and that she would be instrumental in the victory of the Israelites over Jericho. और उसी की वजह से यरीहो के लोगों के ऊपर इजरायली लोग विजय पाने वाले थे। God had plans for Rahab before the beginning of time. और समय के शुरुआत से पहले राहब के लिए परमेश्वर के पास योजना थी। And God sent the spies there so that she could help them and obtain righteousness from God. और प्रभु ने उन जासूसों को उसके पास इसलिए भेजा ताकि वो धर्मी ठहरे, ताकि वो उनकी मदद करे और वो प्रभु को जाने। What we see is God uses people with simple faith. और हम देखते हैं कि सामान्य विश्वास के साथ जो लोग होते हैं उनका प्रभु इस्तेमाल करता है to accomplish the great purposes no matter what kind of past they have. ताकि वो उनके द्वारा अद्भुत काम करे, ये ना देख के कि उनका अतीत क्या है or how insignificant they may be.
और वो कितने सामान्य है वो नहीं देखता है प्रभु। Very often we too are put to test in our lives और कई बार हमारे जीवन में भी हम ऐसी चीजों से गुजरते हैं, because God wants to see whether we will still stand in faith. और प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हम विश्वास में खरे उतरे या नहीं वो देख सके, Or easily crack down when we are faced with difficulties. या फिर अगर मुश्किल के समय में हम उससे जूझ नहीं सकते वो प्रभु देख सकता है। Rahab did not allow her past to keep her away from the new role that God had for her. और प्रभु ने राहाब के लिए जो नया कार्य तैयार किया था उसने अपने अतीत को अपने आप को रोकने नहीं दिया। What was it about Rahab that drew her towards God? और राहाब के बारे में ऐसा क्या था जिसने उसे प्रभु के पास खींचा, That singled her out for salvation. ताकि वही उस राष्ट्र में सारे लोगों में से सिर्फ वही उद्धार पाए। God knew that she would stand with him प्रभु जानते थे कि वो उनके साथ खड़ी रहेगी and his people in courageous faith and obedience to God. और विश्वास से और बहुत बहादुरी से वो खड़ी रहेगी, ये प्रभु जानते थे। Secondly, we see Rahab hides the spies और हम देखते हैं कि and deceives the guards. राहाब जो है वो जासूसों को छुपाती है और राजा के लोगों को वो भरमा देती है। It was not only Rahab who feared the Israelites. और सिर्फ राहाब ही नहीं थी जो इजरायलियों से डरती थी, The whole city had already heard about the miraculous crossing over और पूरे देश ने, पूरे राष्ट्र ने यर्दन से वो जैसे आए थे उसके बारे में सुना था। of the Israelites to the Red Sea. लाल समुद्र के पार वो जैसे आए थे उसके बारे में उन लोगों ने सुना था। She knew that there was something about this God और वो जानती थी कि इस परमेश्वर के बारे में कोई ऐसी बात है who had done miraculous things for the Israelites at that point in time. जिन्होंने इतने अद्भुत कार्य इजरायलियों के लिए उस समय में किए थे। He had given them the promised land, उनको वचन का देश उन्होंने दिया था, part of the Red Sea, उनके लिए लाल समुद्र को दो भागा था। the army of the greatest power of their time was destroyed by God. और उस समय की जो सबसे शक्तिशाली सेना थी, परमेश्वर के सामर्थ्य से उन्हें उन लोगों ने हरा दिया था। She did not allow fear to drive her to cowardice or stagnation. और उसने उस डर को जो इन लोगों में भर गया था अपने आप में भरने नहीं दिया और वो चुप नहीं रही। Instead, that fear transformed her from being an unbelieving to a believing Gentile. और लेकिन उसने उस डर को अपने आप को बदलने दिया और अविश्वासी से वो विश्वासी बन गई। And she recognized that the God of Israel is truly the God of heaven above and the earth beneath. और उसने सच में देखा कि इजरायलियों का परमेश्वर जो है वो स्वर्ग का परमेश्वर और पृथ्वी का परमेश्वर है। She may not have understood the magnitude of her past sinful way of life. और उसको शायद समझा भी नहीं होगा कि उसके अतीत का उसके वर्तमान पर क्या असर हो सकता है और कितना गलत था वो। Yet she had the faith to believe in God and follow God. लेकिन उसमें इतना विश्वास था कि परमेश्वर में वो विश्वास करे और उसके पीछे चलने का निर्णय ले। This is the first step taking in becoming part of God's people. और ये उसका पहला कदम था प्रभु के लोगों का एक भाग बनने में। This was something that Rahab realized. और ये राहाब को पता चला। And something that the other Israelites did not realize. और बाकी इजरायलियों को ये बात नहीं समझी। The God is not an ordinary God. The God we serve is not an ordinary God. और जो परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो परमेश्वर सामान्य नहीं है। He is an all-powerful God. वो शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली परमेश्वर है। And today we have such a privilege to worship this true and living God. और ये हमारा सौभाग्य है आज की इस सच्चे और जीवित परमेश्वर की हम आराधना कर सकते हैं। Just as he destroyed the mighty armies और जैसे उसने in Jericho, उन यरीहो की इतनी शक्तिशाली सेना को हराया, he can save and protect us from the enemy and death. और हमें वो शत्रु से और मृत्यु से बचाने का सामर्थ प्रभु में है। We next see Rahab saves herself and her family as well. और फिर हम देखते हैं कि राहाब अपने आप को ही नहीं लेकिन अपने परिवार को, घराने को भी बचाती है। Rahab feared God. राहाब ने परमेश्वर का डर रखा। And as a result, her life and the life of all her family members was saved. और उसी की वजह से उसके परिवार के लोग, उसके घराने के लोग बच गए।
She helps the spies and makes a deal with them. और वो उन जासूसों को हमने देखा कि उनकी मदद करती है, उनके साथ एक वाचा बांधती है। Eventually, she is saved and her entire family is saved. और आगे हम देखते हैं कि उसने भी उद्धार पाया और उसके पूरे परिवार ने भी उद्धार पाया। Brothers and sisters, Rahab was not perfect. और लेकिन हम जानते हैं कि राहब जो है वो सिद्ध नहीं थी। She too had her weaknesses. उसको अपनी ही उसकी कमजोरियां थी। She was a prostitute. वो एक वेश्या थी। And at that point in time, it was a very, it was a kind of a taboo in, the social status. और उस समय में वहाँ की संस्कृति में वो अच्छी बात नहीं थी। She was considered to be an outcast. और लोग उसे पसंद नहीं करते थे। वो उन लोगों के बीच में नहीं रह सकती थी, उसे बाहर निकाल दिया गया था। They were considered to be the lowest part of the society. और सबसे निचली जाति जो है वो उन्हें समझा गया था। And she was someone who on a day-to-day basis sold herself. और वो अपने आप को हर रोज बेचती थी to gratify the other's sexual lust. ताकि दूसरों की जो वासना है उसे तृप्त करने के लिए। And also for money. और पैसों के लिए भी। This kind of a lifestyle is not necessary in God's kingdom. और प्रभु के राज्य में ऐसी जिंदगी जीना जरूरी नहीं है। Because we have an all-sufficient God who provides all our need and every need. क्योंकि हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो हर जरूरत को पूरा कर सकता है। All we need to do is seek Him. और हमें सिर्फ उसे खोजने की जरूरत है। God will always provide for His followers. प्रभु हमेशा अपने लोगों के लिए उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। If they seek Him first. अगर वो सबसे पहले उनके पास जाके पूछे तो। No believer has to turn his life or her life into any sin. और किसी भी विश्वासी को अपने जीवन को ऐसे पाप की जिंदगी में डालना जरूरी नहीं है। To provide for himself or herself. ताकि वो अपने लिए या अपने परिवार के लिए जरूरतें पूरा करे। We too have our weaknesses. और हम सभी की भी कमजोरियां हैं। But this does not disqualify us from being a part of God's kingdom. लेकिन इसकी वजह से हम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। All that God desires from us to live a worthy and a pleasing life. और प्रभु सिर्फ हमसे यही चाहते हैं कि हम एक योग्य जीवन जिए, एक अच्छा जीवन जिए। He does not want us to compromise at any point in time in our life. और वो नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी चीज में समाधान करें। But instead put our faith and trust in Him. लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपना विश्वास और अपना पूरा भरोसा उन्हीं में रखें। He wants us to fear Him and not fear the situations or the obstacles that surround us. वो चाहते हैं कि हमारे आसपास में जो स्थितियां है, जो मुश्किलें हैं, उनसे ना डर के, लेकिन हम प्रभु से डर के रहें। When we are in Christ, the enemy is under our feet. और जब हम मसीह में हैं, तो शत्रु हमारे पैरों के तले है। And he has no authority over us. और उसका हमारे ऊपर कोई भी हक नहीं है। Because we have been set free from the dominion of sin. क्योंकि उसके राज्य से प्रभु ने हमें छुड़ाया है। And we are more than victorious in Christ और Jesus. यीशु में हम विजेता से भी बढ़कर है। The second weakness was she lied. और दूसरी जो उसकी कमजोरी थी वो उसने झूठ कहा। We all lie. हम सभी झूठ कहते Because हैं we are not perfect. क्योंकि हम सिद्ध नहीं हैं। But when we come to God and we repent of our sins, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और God अपने पापों forgives से us. पश्चाताप करते हैं, प्रभु हमें माफ करते हैं। Amen. आमीन। Rahab was obviously lying to protect the spies. और हम देख सकते हैं कि राहब सिर्फ जासूसों को बचाने के लिए झूठ बोल रही थी। She is commended and mentioned in Hebrews level because of her faith. और इब्रानियों 11 में उसका नाम लिया गया है। And not for her lying. और उसको उसके विश्वास के लिए उसको दाद दी गई है, ना कि क्योंकि उसने झूठ कहा। Rahab broke a lesser principle telling the truth. और उसने एक छोटा जो मूल्य होता है कि हम झूठ नहीं बोलते, उसे तोड़ा। To uphold a higher principle of protecting God's people. ताकि जो बड़ा मूल्य है, जो है लोगों की जान बचाना, उसे पूरा करने के लिए उसने वो छोटा सा झूठ कहा। Rahab broke a lesser principle, telling the truth to uphold a higher principle of protecting God's people. और राहब ने जो है लोगों की जान बचाने के लिए वो झूठ बोला। Under that kind of a pressure, she had to make a choice. और उस तरह के दबाव की वजह से उसे वो चुनाव करना पड़ा। The Bible is very clear that lying is not acceptable in the eyes of God. और शास्त्र बहुत ही
सरल रीति से कहता है कि झूठ बोलना प्रभु को बिल्कुल ही पसंद नहीं। Proverbs 12 verses 22. हम नीति वचन 12 और 22 में देखते हैं ये। We all are faced with dilemmas in life. और जीवन में सभी को मुश्किलें होती हैं। We may feel there is no perfect solution to our problem. और हमें ऐसा लग सकता है कि हमारी स्थिति में कोई भी उपाय नहीं आ रहा है। Fortunately, God does not demand that our judgment be perfect in all situations. लेकिन प्रभु ये हमसे नहीं कहते कि हमारी सोच और हमारा उपाय हर चीज में सही होगा या अच्छा होना चाहिए। He only wants us to put our trust and faith in Him. वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अपना भरोसा, अपना विश्वास सिर्फ प्रभु में डालें। He wants us to do the best we know. और वो चाहता है कि हमें जो सबसे उत्तम चीज आती है वही हम करें। Rahab did what she had to do and she was commended for her faith. और राहाब ने जो उसको करना था वो उसने किया और उसकी वजह से उसको दाद दी गई, उसको प्रेज। Okay. She knew it would involve risks, but yet she was willing to take that faith. उसको पता था कि इस चीज में जोखिम था, लेकिन फिर भी उसने विश्वास का कदम उठाया। Besides her weaknesses, Rahab also had strengths in her. लेकिन इन कमजोरियों को अगर हम भूल जाए तो उसमें काफी सारी सामर्थ्य भी थी। She had concern and compassion for her family as well. उसको अपने परिवार के लिए दया भी थी उसको। She wasn't selfish. She did not want only to think about herself, but she was also thinking about the salvation of her entire family. And she wanted the entire family to be spared and saved. और वो स्वार्थी नहीं थी, उसने सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचा और ये नहीं सोचा कि सिर्फ मेरी जान बच जाए, लेकिन उसके परिवार, उसके घराने के बारे में भी सोचा और उसको उन्हें भी बचाना था। Probably at that point in time, she would have thought about money, a new home. और उस समय शायद उसने सोचा होगा कि मैं पैसे लूं या फिर एक नया घर लूं। Or she could have compromised in different areas of her life. लेकिन अलग-अलग स्थितियों में भी वो समाधान कर सकती थी। But her request was that her entire family could be spared. लेकिन उसकी सिर्फ एक ही उनके पास याचना थी, एक ही बात उसने कही कि उसके परिवार को छोड़ दिया जाए। Okay, the second thing we see, her commendable faith in God. और हम देखते हैं दूसरी बात कि उसका जो अद्भुत विश्वास था परमेश्वर में। The rest of the Israelites had hardened their hearts, but she had faith that God would deliver the Israelites. और बाकी सारे इजरायलियों ने अपने हृदय को कठोर कर लिया था, उन्हें विश्वास नहीं था कि प्रभु हमें बचा सकता है, लेकिन राहाब को विश्वास था कि प्रभु इजरायलियों को बचा सकते हैं। What can we take from the life of Rahab? और इस रेहाब की जिंदगी में से हम क्या सीख ले सकते हैं? Firstly, making a choice. सबसे पहले कि हम चुनाव करें। Rahab lied to save the lives of the spies. और राहाब ने जो जासूसों के जीवन को बचाने के लिए झूठ कहा। She believed that the Jews would defeat Jericho because of God's power that was with them. उसने विश्वास रखा कि यहूदियों को इस स्थिति में विजयता मिलेगी क्योंकि उनका प्रभु उनके साथ था। It was a fight of the good against evil. और अच्छाई की बुराई के खिलाफ युद्ध था यहाँ पे। The one true God against all the other false gods. एक सच्चा परमेश्वर सारे झूठे भगवानों के सामने। She had already seen what God had done for them. और उसने पहले ही देख लिया था कि प्रभु ने इजरायलियों के लिए क्या-क्या काम किए थे। We must realize that God's victory over Satan is assured. और हमें ये जानने की जरूरत है कि शैतान के खिलाफ प्रभु की जो विजयता है वो पूरी तरह से वो है, उसका कोई भी शैतान के खिलाफ प्रभु विजयी है। Yes, amen. God will prevail. और प्रभु का राज्य बढ़ेगा। God did it for them and He will do it for us as well. प्रभु ने उनके लिए किया, वो हमारे लिए भी कर सकते हैं। When our faith is tested, जब हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, or when the situation around us seems bleak, या हमारे आसपास जब मुश्किल बहुत ज्यादा होती है, if we make the choice to follow God, अगर हम परमेश्वर के पीछे चलने का चुनाव करें, all the promises that God has for us in our life will come to fulfillment. और प्रभु ने हमारे जीवन में जो भी वादे किए हैं वो सारे पूरे होंगे। Because He is a faithful and miracle working God. क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और अद्भुत काम वो कर सकता है। We have the choices that we can make. और हमारे पास चुनाव है जो हम कर सकते हैं। We can either choose God,
या तो हम परमेश्वर को चुन सकते हैं or the world. या संसार को। Following Jesus will probably not be a popular choice. और लोगों को शायद पसंद ना आए कि हम यीशु के पीछे चलते हैं, But brothers and sisters, I assure you it is the right choice. लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाकर कहती हूँ कि ये सही चुनाव है। And those who make the choice of following Jesus will be rewarded. और जो लोग यीशु के पीछे चलने का चुनाव करते हैं वो बहुत आशीष पाते हैं। We see this in James 1 verse 12. हम यहोशू की किताब 1 और 12 में देखते हैं। Secondly, we see that she puts others first. और हम देखते हैं कि वो औरों को औरों की देखभाल अपने से ज्यादा करती है। She took a risk of sheltering the spies and hiding them. और उन जासूसों को छुपाने के लिए और उन्हें बचाने के लिए वो जोखिम लेती है। Although her lying wasn't the right way to handle it, और उसने जो झूठ कहा वो सही तरीका नहीं था। it shows that she was willing to die for her belief that God would give her victory over the Israelites. लेकिन वो ये दिखा रहा था उस समय कि उसे मौत भी स्वीकार थी, लेकिन वो इजरायलियों के परमेश्वर के लिए खड़ी रहने वाली थी। She would get victory for the Israelites over her own people. और अपने लोगों के खिलाफ वो इजरायलियों के लिए विजेता चाहती थी। Thirdly, we see God saves and protects many for the sake of one. और तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर बहुत लोगों को बचाता है एक की वजह से। Before letting the spies escape, और उन जासूसों को जाने से पहले she made them swear an oath उनके जाने से पहले उसने उनके साथ एक वाचा बांधी that they would show kindness to her father's house, कि वो उसके पिता के घराने के खिलाफ हाथ नहीं उठाएंगे, and give her a true token. और सच में उसको उसने जो किया, जो झूठ कहा, उन्हें बचाया, उसके लिए उनके लिए वो कुछ करेंगे। Okay, spare her father, her mother, her brothers, sisters, and all they have. और जब उस राष्ट्र पे युद्ध के लिए वो आने वाले थे, लोगों के खिलाफ हथियार उठाने वाले थे, उसके परिवार और उसके घराने के खिलाफ कोई हथियार नहीं उठाए, ये उसने कहा। And delivered their lives from death. और मृत्यु से उसने उन सभी लोगों को बचाया। Joshua 2 verse 12, that is in. और यहोशू की किताब 2 और 12 में है ये। This is the type of faith Rahab had. और इस तरह का विश्वास था राहाब में। She had heard amazing stories of what God had done for the Israelites. और उसने अद्भुत कार्यों के बारे में सुना था जो यीशु प्रभु ने इजरायलियों के लिए किया था। And for Rahab and her entire family to be saved, she needed to do something as well. और राहाब और उसकी पूरे परिवार को उद्धार पाने के लिए और उस स्थिति में से निकलने के लिए उसे कुछ करने की जरूरत थी। God is willing to save people. God is willing to save those people who are willing to be saved. और जो लोग बचना चाहते हैं, जो लोग उद्धार पाना चाहते हैं, उन्हें उद्धार देने के लिए, उन्हें बचाने के लिए प्रभु तैयार है। He does not want anyone to perish for the lack of knowledge of his word. और वो नहीं चाहते कि कोई भी उसके वचन से वंचित रहने की वजह से, जिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, वो उद्धार ना पाए। But all he wants from us is to repent. और वो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें। 2 Peter 3 verse 9. 2 पत्रस 3 और अध्याय 9 वचन 9 में लिखा है, Through God's grace we are saved and not on our own. सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम बचते हैं, ना कि हमने कुछ किया इसकी वजह से। But God still expects us to do something to develop the righteous and godly character. लेकिन प्रभु सिर्फ फिर भी ये चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ करें, ताकि वो जो हमसे धर्मी चीजें चाहता है वो हम कर सके। To rule in his kingdom. ताकि हमारा चरित्र ऐसा बने कि हम धर्मी हो और उसके राज्य में हम अच्छे से रह सके। Rahab could have placed her faith on the great walls of Jericho. She could have escaped from there. यरीहो की जो बड़ी दीवारें थी, राहाब उनमें विश्वास रख सकती थी। वो सोच सकती थी कि अरे हम बच जाएंगे या मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। She could have dismissed the power of God. और उसने परमेश्वर की सामर्थ को तुच्छ जानना उसके लिए मुमकिन था। She could have betrayed the spies. उसने उन जासूसों के बारे में राजा के लोगों को बता सकती थी वो, and turn them over to the king's soldiers. और राजा के लोगों के सिपाहियों के पास उन जासूसों को वो दे सकती थी। No, she didn't. लेकिन वो उसने नहीं किया। But she put the safety of the entire household in the belief that God is able to deliver them from danger. लेकिन उसने अपने घराने की
उसने अपने घराने को इस विश्वास के ऊपर रख दिया कि परमेश्वर उन्हें उस स्थिति में से बचा सकता था। Instead of trusting the walls of Jericho, she trusted God's wall of protection. और यही यरीहो की जो ऊंची इमारतें थी उसमें विश्वास रखने से अच्छा उसने परमेश्वर की इमारत में विश्वास रखा। Brothers and sisters, we must always remember that God's mercy extends to all people. और हमें याद रखने की जरूरत है कि प्रभु की दया जो है वो सारे लोगों के ऊपर है। God sent his son Jesus Christ to die for the entire humanity and Ye- not just for a select few. यीशु मसीह को प्रभु ने सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं लेकिन सारे संसार के लोगों के लिए भेजा ताकि वो हम सभी के पापों के लिए अपनी जान दे, Therefore, through the faith of some, we will eventually be saved. ताकि कुछ लोगों के विश्वास के द्वारा हम सब उसके बाद में उनके बारे में सुनकर उद्धार पाएंगे। The story of Rahab, a Canaanite and Gentile woman, represents the promise of God to extend salvation to non-Israelites. और राहब की जो कहानी है उससे हम देखते हैं कि वो कनान से थी जो इजराइल के शत्रु थे और वो अविश्वासी थी, लेकिन उसकी कहानी के द्वारा हम देखते हैं कि प्रभु हम सबको कैसे अपने राज्य में स्वीकार करता है। Acts 2 verse 21 says, और प्रेरितों के कार्य 2 और 21 में लिखा है, and everyone who calls on the name of the Lord will be saved. और जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। Our simple faith can have a huge impact on others' lives as well. और हमारा जो सामान्य विश्वास है वो औरों के जीवन में बहुत ही बड़ा कार्य कर सकता है। Just as Rahab's faith saved the entire family और from जैसे destruction. राहब के विश्वास ने उसके परिवार को और घराने को बचाया, Their new life with the Jews gave them a chance to know God, और उनके जो नए जीवन को जो यहूदी के साथ वो जीने वाले थे उसके द्वारा उन्हें प्रभु को जानने का मौका मिला, and their lives to be transformed as Rahab was. और राहब की जिंदगी जैसे बदल गई थी, जैसे उसने उद्धार पाया था वैसे ही वो उद्धार पाने वाले थे। When our families are saved, it begins with one person being saved, isn't it? और जब हमने उद्धार पाया तो कई बार होता है कि परिवारों में कोई एक पहले उद्धार पाता है, Your belief can influence the whole family. और एक अकेले का विश्वास जो है पूरे परिवार को बदल सकता है। When we are saved, our thoughts should be immediately to turn to our family's salvation, just like Rahab did. और जैसे राहब ने किया वैसे ही हमारी भी सोच पहले यही होनी चाहिए, जैसे ही हमने उद्धार पाया कि हमारे परिवार के भी सारे लोग उद्धार पाएंगे। Okay, we also see that God saves even the worst sinners. और हम देखते हैं कि प्रभु जो सबसे नीच पापी होता है लोगों की आंखों में, उन्हें भी प्रभु बचा सकता है। There is no doubt she lived a sinful life. और कोई नहीं कह रहा है कि उनका राहब का जो अतीत था वो पाप से भरा हुआ नहीं था। Nevertheless, she had the faith to believe that God is able to set her free and to forgive her of her sins. लेकिन उसमें ये ताकत थी, क्षमता थी कि वो ये विश्वास करे कि प्रभु उसके अतीत से, उसके पाप से उसे उद्धार, उसे माफी दे सकता था। There is no sin too great for God if we repent. और प्रभु के लिए ऐसा कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है कि वो माफ नहीं कर सकता अगर हम पश्चाताप करेंगे तो। Because God is a merciful God, क्योंकि प्रभु दया से भरा हुआ है, a loving God, वो प्रेमी है, a forgiving God. और वो माफ करने वाला परमेश्वर है। And throughout the Bible, we see many descriptions of his undying mercy towards his people. और हम देखते हैं शास्त्र में कई बार उसकी ऐसी दया के बारे में लिखा है जो चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो लेकिन वो दया कभी रुकी नहीं है। God never gets tired of showing his mercy और towards us. प्रभु हमारे लिए अपनी दया और अनुग्रह दिखाने में कभी भी पीछे नहीं हटता। Lamentations 3:22-23. और Lamentations 3. विलाप की 3:22 और 23 में लिखा है। And you can see this in 2 Corinthians 7 verse 10. और 2 कुरिन्थियों 7 और वचन 10 में लिखा है। We need to have an attitude of gratitude and thank God at every point in time in our life. हमारे लिए जरूरी है कि हमेशा हम प्रभु ने हमारे लिए जो किया है, जो उद्धार हमने पाया है, उसके लिए हम धन्यवादित हृदय से प्रभु के सामने आए। Even though we were dead in our transgressions, क्योंकि हम अपने पापों में मर गए थे, God saved us. और हम मरे हुए थे लेकिन प्रभु ने हमें वापस जिलाया, जीवित किया। He brought us out from the darkness of night into this world of light. और रात का जो अंधेरा था हमारे जीवनों पर, उससे प्रभु ने उजाला किया।
Though our sins may be different from Rahab's, we are equally guilty. और हमारे पाप क्यों ना राहब के पाप से अलग हो, लेकिन हम उतने ही दोषी हैं। All of us have been given to the lust of the flesh और शरीर के वासनाओं का अनुभव सभी ने किया है, and the eyes and the boastful pride of life. और आंखों की वासना और जीवन का जो घमंड है वो हम सभी में था। 1 John 2 verse 16. 1 यूहन्ना 2 और 16 में ये लिखा है, Even as we stand in faith for our near and dear ones, और जैसे हम अपने प्यारे लोगों के लिए, नीच लोगों के लिए विश्वास में खड़े रहते हैं, we need to believe that God will save them. हमें ये पूरी तरह से विश्वास करने की जरूरत है कि प्रभु उन्हें बचाएगा, उन्हें उद्धार देगा, No matter how bleak and how impossible it looks. चाहे वो कितनी भी मुश्किल स्थिति क्यों ना लग रही हो। I would encourage you, don't give up. और मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप बिल्कुल हार ना माने। God can save anyone no matter what they have done. और प्रभु किसी को भी बचा सकता है, उद्धार दे सकता है, चाहे उनका अतीत क्यों कुछ भी हो, Or how disinterested they may seem to be. और चाहे उन्हें प्रभु के राज्य में बिल्कुल ही दिलचस्पी ना हो, Because God does not take interest in our past. He set us free from our past. क्योंकि हमारे अतीत में क्या है ये प्रभु के लिए मायने नहीं रखता है। All we have to do is to call on God हमारे लिए सिर्फ ये जरूरत है हमें कि हम प्रभु के नाम को पुकारे and live a life worthy and pleasing to Him. और हम ऐसा जीवन जिए जो उसके लिए, उसको पसंद आए और उसके मन को भाए। The life of Rahab shows us that no matter what your current circumstance is, और राहब की जिंदगी से हम देखते हैं कि आपकी वर्तमान की स्थिति कुछ भी हो, God will still accept you the way you are. प्रभु आपको आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना चाहते हैं। All you need to do is to stand rooted and firm in His word. और आपको सिर्फ उसके वचन में और उसके शब्द में खरे उतरने की जरूरत है, And trust God alone. और सिर्फ परमेश्वर में विश्वास करने की जरूरत है। Let's take the example of Rahab's life और जैसे हम राहब की जिंदगी को देख रहे हैं, उसका उदाहरण देख रहे हैं, and take faith, courage and obedience. और हम विश्वास, बहादुरी और अधीनता को देखें इसमें, And walk in faith and serve God. और हम परमेश्वर के राज्य में विश्वास से चले और प्रभु की सेवा सच्चे हृदय से करें। Remember, no matter who you are, और याद रखिए आप कोई भी क्यों ना हो, God can still use you प्रभु फिर भी आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, because our steps are ordered by God. क्योंकि हमारी हर कदम पर प्रभु का ध्यान है। Amen.